anything. Whatever I feel it, if I like a subject and if I like that issue that I want to bring it ahead, I just do the film. So just like how I'm doing a film, Toilet Ek Prem Katha. विजय जी, आपसे एक सवाल है। जो छोटे शहरों की फिल्में या जो कह लीजिए कि जो देसी सब्जेक्ट पर आधारित फिल्में होती हैं, उनका मार्केट न सिर्फ मल्टीप्लेक्स में बल्कि सिंगल स्क्रीन में बहुत अच्छा रहता है। इस लिहाज से जॉली एलएलबी में आपको क्या रिस्पॉन्स मिला सिंगल स्क्रीन्स का? हाँ जी, देखिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये ट्रेडिशनली हम इंडस्ट्री में मल्टीप्लेक्स सिंगल स्क्रीन्स की बात करते हैं। मेरे हिसाब से ये सब कैनवस बदल रहा है। आई थिंक इट इज़ अबाउट गुड कंटेंट एंड कंटेंट विच रीचेज आउट टू अ लार्जर ऑडियंस। क्योंकि मेरे हिसाब से जहाँ भी हम देख रहे हैं टियर 2 या टियर 3 टाउन में जहाँ सिंगल स्क्रीन था, जो मल्टीप्लेक्स बन गया है, एज सून एज द मल्टीप्लेक्स या द एनवायरनमेंट इम्प्रूव्स, यू आर गेटिंग फैमिलीज कमिंग इन। पर आई कम्प्लीटली एग्री विद यू कि हम देख रहे हैं विच इज़ अ वेरी गुड ट्रेंड कि मोर एंड मोर जो नैरेटिव्स विच आर रूटेड इन इंडियन इन द बेली ऑफ इंडिया, those are finding acceptance even in what we call multiplex audiences. So I think this is a great phase from Bollywood story writing, because it is allowing us to reach out to stories which are really more integral to India itself. जैसे जॉली एलएलबी की कहानी है। फॉक्स पिछले 2 सालों से काफ़ी कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में प्रमोट कर रहा है। इसकी कोई खास वजह या आपकी स्ट्रेटजी है? बिल्कुल, जैसे आपने राइटली कहा, हमने 3-4 साल लिए, काफ़ी हमको धक्का भी हमने लगा, पर इम्पॉर्टेंटली वी लर्नड इन द प्रोसेस, हम सीखे उससे। एंड द कंक्लूजन वी केम टू इज़ कि हमको हाँ फिल्में ज़रूर बनानी है, बट वी वांट टू बी इन्वॉल्व विद कंटेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम अ स्क्रिप्ट स्टेज। And we want to be working with people, both directors and actors, जहाँ there's a long-term relationship that can be worked out. Because industry छोटी है, 6-7 फिल्में बनानी है, so let us at least enjoy the process of making the film and let's make the right films. ये नहीं है कि हमारी फिल्में सभी काम करेंगी, but I think at least we are trying our best to make sure that we start with a script. देखिए वो that is honorary, that is not that what you think. अक्षय, आपने रियल लाइफ में भी वीडियोस के ज़रिए मैसेजेस ऐसे दिए हैं कि जब भी कोई सोशली रेलेवेंट इशू होता है, सो नाउ अब जब आप कोई फिल्म के बारे में सोचते हैं कि अब मुझे अगली कोई फिल्म करनी है, डू यू हैव दिस थिंग इन माइंड कि कोई ऐसा इशू अपने फिल्म के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाए जिससे लोगों तक कोई मैसेज आप पहुंचा सकें? You want to know about? No, is there any kind of other kind of? Now, as an actor. No, are you asking me that do I deliberately put any issues? No. Do you plan now? Because no, I don't plan anything. I don't plan anything. Whatever I feel it, if I like a subject and if I like that issue that I want to bring it ahead, I just do the film. So just like how I'm doing a film, Toilet Ek Prem Katha. Now that is I'm sure you guys know that 50% of India doesn't have toilets at home. Isn't that a very alarming thing? And which talks about this kind of I got a great subject. I got a real kahani mili mujhe. So I said I want to make this film. It's a very taboo talk about. When I announced the name Toilet Ek Prem Katha, तो कई लोगों के फोन आए थे, यार टॉयलेट क्यों रख रहा है नाम तू यार, कि ये कोई और नाम नहीं है क्या तेरे पास? But it is there on the face. I mean, I'm talking about what it is. Toilet Ek Prem Katha, and it's a real story. Why run away from it? It is one of the biggest problem we have. Like imagine, I mean, do you guys know there are about 1,000 children every day in India, 1,000 children every day in India dying of diarrhea. Do you guys know? That is equivalent to 2 jumbo jets with children crashing every day. Isn't that an alarming thing? And this you can note the fact. This is there. So I thought this kind of a film with commerciality, with realism, with comedy, with entertainment, with good songs, if I present it to the people, then they can understand it.
यहाँ तो लोगों के पास टॉयलेट हैं, लोग टॉयलेट में नहीं जाते हैं, वहाँ वो बना लेते हैं, अपनी दुकान बना लेते हैं. द गवर्नमेंट हैज़ मेड टॉयलेट्स. इट्स अगर मैं बात करने जाऊँगा तो इट विल टेक अबाउट 2 hours फॉर मी टू जस्ट कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट. It's a thing which I request you media to write about it very honestly and sincerely, because we require another thing, India is number 1, 54%. हम सबसे आगे हैं that we don't use toilets. We go सिर्फ खेतों में जाते हैं, बाहर जाते हैं, नालों में खड़े हो जाते हैं, and that's a shameful thing. So that's what it is, man. Hi Akshay. Last 2 questions, please. Hi Akshay, मेरा सवाल है कि आपने पिछले 25 सालों में इतने अलग अलग तरह के किरदार निभाए हैं, इस फिल्म में वकील बने हैं, और आपके सामने 2 प्रोलिफिक एक्टर्स सौरभ शुक्ला और अन्नू कपूर जी थे, तो किसी तरह का आप पे प्रेशर था उनके सामने परफॉर्म करने का? और दूसरा सवाल ये कि आपने इस फिल्म के लिए, वकील के लिए, किस तरह की तैयारी की थी बाकी अलग फिल्मों से, क्योंकि इसका चैलेंज एक अलग तरह का था आपके लिए? पहला प्रश्न, मेरे पास प्रेशर था, ये इसका मैं उत्तर देता हूँ जी. ऐसा है कि मेरे पास प्रेशर नहीं होता है इस चीज़ का कि मैं इन दोनों के सामने खड़ा हूँ. जैसे कोई बच्चा नहीं होता जब कोई कैंडी शॉप में चला जाता है और देखता है कैंडीज़ हैं और मतलब अब उसको खाने को चीज़ें मिलेंगी, तो उसको प्रेशर नहीं होता. उसी हिसाब से मैं इन दोनों को देखता था, इतने अच्छे एक्टर्स हैं, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ चीज़ें मिलेंगी, तो उस हिसाब से मेरा हाल था. मैं इनके पास खड़े रह के सिर्फ इनकी बातें सुनता था. जैसे मैं हमेशा मजाक करता हूँ, इन्होंने जितने भी एक्टर्स रखे हैं वो बताइए ना सर, बताइए. नहीं, वही मजाक करते हैं कि मेरी फिल्म में कोई 6 एक्टर हैं जो NSD से हैं, 4 एक्टर FTI से हैं. तो मैं ही सिर्फ खालसा कॉलेज से था. That's the joke. और दूसरा सवाल ये था कि किस तरह के प्रिपरेशन आपने की थी इस किरदार को निभाने के लिए? जी, प्रिपरेशन मैंने नहीं की थी, प्रिपरेशन इन्होंने की थी. और यही मुझे इन्होंने ही बताया कि जैसे मैंने आपको बताया, मैं कभी कोर्ट तो गया नहीं हूँ, मैं कभी मेरी ज़्यादा मुलाकात किसी वकील से हुई नहीं है, लेकिन इन्होंने मुझे बताया, ही एक्सप्लेन्ड मी एवरीथिंग, बिकॉज ही हिमसेल्फ हैज़ बीन अ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट एंड ही नोज अ लॉट अबाउट दैट वर्ल्ड and he has seen it himself. So I just followed him thoroughly, like a pure good student, and that is it. Akshay here. Last question, please. नहीं कोई बात नहीं, बोलिए. नहीं I couldn't see. Sorry. नहीं, मुश्किल तो होता है, अगर आप लीगल दुनिया से नहीं है तो उस भाषा को समझ पाना मुश्किल होता है. लेकिन चूंकि मैं जर्नलिस्ट था और थोड़ा बहुत मैंने कोर्ट्स को कवर किया है, तो पता था कि किस चीज़ का मतलब क्या होता है. और जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था तो पहली फिल्म में भी, इसमें भी ये कोशिश करने की कोशिश थी कि जो भी लीगल भाषा है उस उसके लीगल फ्रेमवर्क को ना तोड़ा जाए, लेकिन भाषा ऐसी हो जो आम ऑडियंस और आम दर्शक को समझ में आ सके. तो अगर आप बिल्कुल लीगल ज़बान की बात करेंगे तो वाकई आम इंसान के लिए समझना मुश्किल चीज़ है. लेकिन हमने प्रयास किया कि उन लीगल चीज़ों को आसान भाषा में करके, बिना छेड़छाड़ किए किसी चीज़ से, तो मैं समझता हूँ दर्शकों ने उसको अप्रिशिएट किया है. मतलब मैं तो आपके साथ सहमति जता सकता हूँ, लेकिन मुझे इस बात का एहसास है कि ये बहुत बड़ा काम है. मतलब हम अंग्रेज़ों के ज़माने का लीगल सिस्टम इस मुल्क में फॉलो करते हैं, ब्रिटिश सिस्टम फॉलो करते हैं, और उसमें इतना बड़ा परिवर्तन अगर करना हो तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा काम है. लेकिन अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. बहुत बार चलाई है स्कूटर, मेरे पास होती थी. नहीं, बाइक भी चलाई है, स्कूटर भी चलाई है, लूना भी चलाई है, सारी चीज़ें चलाई, साइकिलें चलाई है, सब चलाई हैं.